Now, sitting arrangement is yet another important concept which we need to understand to solve the questions related to figures and analogy or like arrangement, right? So यहाँ पे clockwise, anti-clockwise का अंडरस्टैंडिंग हमें पुख्ता बनाना है कि आप चाहे लेफ्ट हो राइट हो, doesn't matter in which direction you are facing, it will always clock हमेशा एक ही डायरेक्शन में घूमेगी. सिमिलरली जब हमें बताया गया है कि लेफ्ट एंड राइट, इट डिपेंड्स अपॉन किसका लेफ्ट, whose left. So that's also we need to look into mind. अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि ये कुछ concepts हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते दौरान यूज करने होंगे. अगर हमें एक क्वेश्चन दिया है तो हमेशा सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ पीपल और द नंबर ऑफ elements that you have been told. Draw the framework and arrange all of them in. Solve the sentence by sentence question. Solve question sentence by sentence to merge that final figure, merge that final conclusion into a beautiful and simplistic figure that can help you understand and solve many of the questions that can be succeeding. जैसे usually होता ही है sitting arrangement वाले में आपको 4 questions दिए जाएंगे. तो अगर आपने proper figure एक proper अच्छे से बना लिया, then you are easily able to solve the 4 questions. Let's see how. Okay, so yes, let us take a question. A, B, C, D, E, F, G. यहाँ पे 7 दोस्त है. ओके, 7 दोस्त हैं और इन 7 दोस्त ये सारे दोस्त एक लाइन में बैठे हैं and they all are facing north. They all are facing north. इसका मतलब क्या हो गया? When the people are facing towards north, उसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट. इसका मतलब हम भी अपने आप को उन्हीं के जगह पे फेस करके एक्चुअली विजुअलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मेंशन है कितने हैं दोस्त? 7 दोस्त है जिनमें से अरेंजमेंट हमें बताई गई है. D is to the immediate right of C. इमीडिएट राइट का मतलब क्या है? D के डायरेक्ट राइट में है. सॉरी, D is immediate right of C. ठीक है. E and A are neighbors of F. तो F जहां कहीं पे भी हो, E और A, E and A, either it can be like this or it could be, let me keep it like this, or it could be E and A. Okay, 2 possibilities. फिर आगे बताए B is to the immediate left of C. C के लेफ्ट में है B, and on the second place from the leftmost end. मतलब क्या हो गया इसका? यहाँ पे कोई एक कोना बाकी है. ठीक है. Now you mentioned A is at the rightmost end. Now see, हमें बताया है A राइट में है, इसका मतलब ये वाली एनालॉजी फिट हो जाएगी यहाँ पे. क्लियर है? ये वाला फॉल्स हो गया. रिमूव दिस. कितने दोस्त थे? 7 दोस्त थे. 7 के बाहर नहीं है, इसका मतलब ये वाला G हो गया. क्लियर है? So now you are asked who is in between C and E. तो आप बताइए who is in between C and E? It is B and D. So easy. जैसे ही हमारा ये रो क्लियर हो जाएगा ऐसे ही हम सॉल्व कर पाएंगे. Who are the neighbors of G? G के नेबर्स क्या है? There's only one, only B. हाँ बिल्कुल सही. अब ये तो हो गया रो वाला क्वेश्चन. ऐसे ही आपको सर्कल वाला भी आ सकता है. सर्कल में बताया जाएगा कि there are 7 friends who are inside the circle. They are facing inwards. They are facing inwards. So इस कंडीशन में आपको बताया जाएगा कि when let me go back to that type. When you are told कि in the circular arrangement, when all people are facing inward or towards the center, in such case क्या होगा? When all are facing inwards, in such case person to his
और स्पेसिफिक पर्सन राइट आर ऑल इन एंटी क्लॉकवाइज. राइट साइड में अगर है तो सारे एंटी पर्सन टू हिज और हर राइट, टू हिज और हर राइट, इसका राइट सारे एंटी क्लॉकवाइज होंगे, है ना. इसका राइट, इस पर्सन का राइट ये वाला, फिर इस पर्सन का राइट ये वाला. सो सारे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होंगे. दैट्स व्हाट इज मेंशन. सिमिलरली अगर मेंशन है कि पर्सन टू हिज लेफ्ट, जैसे देयर इज ए पर्सन, तो ए के लेफ्ट में कौन होगा, कोई भी हो, बट वो यहाँ पे आएगा. सिमिलरली जैसे मान लो ये बी है, इसका नाम बी है, तो बी का लेफ्ट कौन होगा, सी. दे ऑल फॉलो क्लॉकवाइज ऑर्डर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Similarly, अगर that we have been told that people are facing outwards, तो बस analogy opposite हो जाएगी. When we will be have to solve it in the form कि person to his or specific left are in anti-clockwise. जैसे if we are, let me give you with the proper understanding. बाकी it's easy. It's just that अपने आप को वहां पे डाल के देखो. जैसे मान लो आप भी वहीं पे हो, तो आप चेक करो आपका लेफ्ट कौन सा है, आपका राइट कौन सा है. Then you'll be able to understand. कुछ रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है. मैम ये ग्रुप में डाल दीजिए. हाँ, ये एक इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा, मैं डालूंगी टेस्ट में. आपको पूछा है मैंने, तो आप फिर आराम से सॉल्व कर पाएंगे. इट्स नॉट अ टफ पॉइंट, इट्स जस्ट दैट यहाँ पे एक पॉइंट है, पर्सन है, अगर सारे इनवर्ट्स फेस कर रहे हैं तो आप अपने आप को वहां पे ढाल के देखिए, उसका लेफ्ट इट विल ऑल फॉलो द क्लॉकवाइज ऑर्डर. अगर हम कह रहे हैं राइट साइड, इसका राइट राइट राइट, देन दे ऑल विल फॉलो द एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर. एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट. सो अगर मान लो हमें बताया गया है कि people, persons are facing outward, है ना, then person A person का लेफ्ट यहाँ पे जो भी है, ये B person का लेफ्ट C, they all follow the sorry person का लेफ्ट, yes, they all follow the clockwise order, correct, they all follow clockwise order. अगर हम कहेंगे इसका A का राइट D है, D का राइट E है, now they all are following anti-clockwise order, anti-clockwise direction. ये बस आपको इसलिए समझाया मैंने क्योंकि जब हम अरेंज कर रहे होंगे उस दौरान कैसे अरेंज करना है ये हम समझ पाए. ठीक है. So there's this beautiful questions which I've put in the test, और वो आपको आ जाएगा रैंडम तौर पे संडे, जैसे हम हर संडे सॉल्व करते हैं किसी अलग अलग कंसेप्ट पे, राइट. सो दिस संडे विल आल्सो बी अ टेस्ट. बाकी वी आर डन विद द कंप्लीट यूनिट 4 पार्ट, एंड यस, लेट्स फाइनली डू शांति पाठ. Joining both palms together.